हेलो एवरीवन। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु शेखर पुंडे और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ये नया चैप्टर जो कि 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का 12th चैप्टर है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट आने वाली है वो कंसेप्ट का सीक्वेंस जो है जो वो मेनली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यानी एचएससी स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन लेकिन आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश इन दो भाषाओं का इस्तेमाल करके मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वीडियो ज़रूरी वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज हिंदी में वार्तालाप करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ हिंदी के शब्द इधर उधर हो जाए तो समझ के लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. So first of all we will try to understand what are the contents in this chapter. First of all, introduction means we will learn that what is aldehyde, what is ketone, what is carboxylic acid, and why these compounds are similar to each other, and what is exactly difference between them. So difference means classification, how they are classified, what is their name, how they are named, what is their nomenclature, how they are prepared from other compounds, their physical properties, the polarity of carbonyl group. Yes, we are going to learn what is carbonyl group also, and their chemical properties. These concepts, these contents we are going to learn. So first of all, the first question is, draw the structures of the following compounds and classify them on the basis of carbon oxygen single bond, CO single bond, and carbon oxygen double bond present in them. So ethyl alcohol means which functional group will be there? Okay, ethyl alcohol means OH group will be there. Acetaldehyde, aldehyde group, O-nitrophenol, diethyl ether, isopropyl alcohol, and acetone. So now we will look structures of these compounds and then we will classify them. Okay, here is ethyl alcohol. So carbon oxygen single bond is there. Diethyl ether carbon oxygen single bond. But in acetaldehyde carbon oxygen double bond is present. In isopropyl alcohol carbon oxygen single bond. O-nitrophenol also. Now look carefully. In O-nitrophenol there is a double bond present, but it is not present between carbon and oxygen, because as we all know this is a carbon atom. Okay, and the bond between carbon and oxygen is a single bond, so it is not a double bond. So that's why it is also we will classify it as carbon oxygen single bond. Then acetone, it have a carbon oxygen, this is the carbon, it is have a carbon oxygen double bond. So what are our classifications? Now I will mark the structures which have carbon oxygen double bond. Acetone, yes, and acetaldehyde. These two structures have carbon oxygen double bond present in them. But what is this carbon oxygen double bond and why it is playing an important role for this chapter? Now we are going to learn. तो ये देखिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो ग्रुप है इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल ग्रुप क्यों कहते हैं वो आज हम छोटे से ट्रिक के साथ जानेंगे। तो मान लो कि एक अरेबियन ओशन है जो आप सबको पता है, छुट्टियों में गए होंगे। अरे गए कि नहीं, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका स्पेलिंग क्या है? CARBONYL। तो उसके स्पेलिंग के बीच में जो ARB है उसको अगर हम ऐसे करते हैं और उसको कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये अरेबियन ओशन का ब्रिज आ गया। क्या आ गया? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अरेबियन ओशन का ब्रिज आ गया। तो ये क्या बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन अपनी वैलेंसी पूरा करने के लिए और क्या करेगा? और दो बॉन्ड बनाएगा ही, ठीक है। तो इसको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है इसको कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। ऐसा जरूरी नहीं कि बाकी ऑक्सीजन अगर इसमें आ गई तो उसको भी कार्बोनिल ऑक्सीजन कहेंगे। जो ऑक्सीजन the oxygen which is a part of that double bond, that oxygen is only called as carbonyl oxygen, and this carbon is called as carbonyl carbon, क्योंकि स्ट्रक्चर में और कार्बन भी आएंगे इसके आगे, इसको अटैच होंगे, लेकिन कार्बोनिल कार्बन किसको कहेंगे, बस इसी को कहेंगे। एंड इन दोनों के ग्रुप को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो इसको डेफिनेशन क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेकिन है सिंपल, ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जैसे कि एक बात देख रहे हो कि तीनों में कॉमन क्या है, दिस कार्बोनिल कार्बन इज कॉमन, दिस कार्बोनिल कार्बन इज कॉमन, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड एंड सी डबल बॉन्ड हो। एंड ये आर है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो कोई भी एक कार्बन की चेन हो गई, मतलब एक कार्बन अटैच हो तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए CH3, दो कार्बन की चेन हो गई, उसको कहते हैं आर। आप समझ रहे हो, ठीक है। इसके बदले AR भी हो सकता है, वो हम आगे जानने वाले, AR क्या है, आर क्या है। फिलहाल तो आप आर समझ गए। सो आर मीन्स, यस, alkyl group. So when, now look carefully, aldehyde means carbonyl carbon and now two bonds are remaining, दो बॉन्ड बचे हैं कार्बन की, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ तो उसने डबल बॉन्ड बना, अभी उसके दो बॉन्ड बचे, उसका चॉइस है उसको क्या करना है। अगर वो एक हाइड्रोजन को साथ में लेता है तो वो क्या बन जाता है, अरे क्या बन जाता है, अल्डेहाइड बन जाता है। तो अल्डेहाइड के केस में क्या कंपलसरी है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर H, सो वो क्या बन जाता है, अल्डेहाइड, ठीक है। और फिर उसको अगर आर अटैच होता है तो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप, क्या बन जाते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो ये होता है अल्डेहाइड। अभी हम दूसरा जानने वाले हैं क्या, ठीक है। अभी कीटोन के केस में क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ मतलब क्या, अगेन अपना कार्बोनिल कार्बन, तो वो कार्बोनिल कार्बन जब भी, तो वो कार्बोनिल कार्बन जब भी दोनों तरफ आर ग्रुप से अटैच होता है, दोनों तरफ आर, मतलब कीटोन के केस में दोनों तरफ कार्बन होने ही चाहिए। आप याद कैसे रखोगे, बड़ा चेन है कोई, तो बड़े चेन के एक साइड में अल्डेहाइड आ सकता है क्योंकि दूसरी साइड में उसके क्या है, H है, तो बड़ा चेन है, एक साइड से कार्बन से अटैच है और दूसरे साइड में उसके हाइड्रोजन है, ठीक है। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी आप देख रहे हैं, लेकिन कीटोन के केस में, कीटोन का स्पेलिंग में क्या है, KETONE, वन है इसकी स्पेलिंग में, तो याद ऐसे रखना है, इसके स्पेलिंग में वन है, लेकिन ये वन मतलब फर्स्ट पोजीशन में कभी भी नहीं रहता है, ये हमेशा सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड, आगे बीच में कहीं भी रहता है, लेकिन सेकंड पोजीशन में कभी नहीं रहता है, ठीक है। ये बात समझ लिया आपने, ठीक है। इसके हमेशा दोनों तरफ कार्बन रहना ही चाहिए, मतलब आर ग्रुप या फिर एआर ग्रुप रहना ही चाहिए, तो इसको कहते हैं कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, ये तो हमारा अल्डेहाइड जैसा है, इसकी इसमें फिर एक बार आ गया कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन, मतलब कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और उसको अल्डेहाइड के केस में H था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या है, OH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी जानने वाले, लेकिन पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड्स। तो अल्डेहाइड को हम कैसे क्लासिफाई करें, एक तो है एलिफेटिक अल्डेहाइड्स, एलिफेटिक अल्डेहाइड्स मतलब CHO ग्रुप। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि ये अल्डेहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, RCHO। इसका मतलब क्या, CHO, यहाँ पर CHO है तो बॉन्ड दिखाया नहीं है, लेकिन CHO मतलब क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा अटैच है, तो उसको अल्डेहाइड को RCHO ऐसे करके भी लिख सकते हैं।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां जहां आगे स्ट्रक्चर आएंगे तो ऐसा भी नाम लिख के आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी RCOOH ऐसा लिखकर आ सकता है, ठीक है, ओके। और कीटोन के केस में भी कभी कभी ऐसा लिख के आता है, RCOR'। इसका मतलब ये CO के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन वो दिखाते नहीं, कंडेंस फॉर्मूला जैसे बनाते हैं, ठीक है, कीटोन के केस में, ओके। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में क्या रहता है, ये जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब क्या, जो कार्बन आगे सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो कार्बन आगे सिंगल बॉन्ड बनाता है, या फिर ऐसा हम कहें कि जिस कार्बन ने CHO से सिंगल बॉन्ड बनाया है। मतलब मान लो कि ये हमारा CHO ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा CHO ग्रुप है। ये कार्बन आगे एक कार्बन से बॉन्ड बनेगा, उनके बीच में रहेगा सिंगल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, ओके। और ये sp3 हाइब्रिडाइज ही क्यों रहेगा, क्योंकि ये कार्बन, देखो हम मैं कार्बोनिल कार्बन ऐसे लिख देता हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप का C डबल बॉन्ड OH, और उसको फिर दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच कर देता हूँ, और इसको बॉन्ड होंगे अटैच शायद कोई भी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हम उसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता, मतलब यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होता, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता, और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता तो sp हाइब्रिडाइज होता। तो sp3 हाइब्रिडाइज ही क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है हमारा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, वो ऑलरेडी इसके साथ दो बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ एक बॉन्ड बन रहा है, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो इसके साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। हाँ, बाद में फिर ये कार्बन अलग बॉन्ड बनाएंगे, बनाएगा या नहीं बनाएगा वो हम आगे जानने वाले, तो फिलहाल तो हम एलिफेटिक एल्डिहाइड देख रहे हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो फर्स्ट वन इज CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। एक एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड एक एक्सेप्शन है कि जिसमें CHO ग्रुप एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड क्या कहते हैं, इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज कंसिडर्ड एज एलिफेटिक एल्डिहाइड दो CHO ग्रुप इज नॉट अटैच टू एनी कार्बन। और ये नीचे का CH3CHO है वो एसिटाल्डिहाइड है। अब ये फॉर्म और एसिड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने तीन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर ये हमारा एल्डिहाइड है, इसको अगर H अटैच होता है, H, तो इस ग्रुप को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और यही H अगर हमारे इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड होता है तो इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, फॉर्मिक एसिड, चलो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है,
हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बना है, लेकिन फॉर्मेनॉन क्यों नहीं बनेगा? बताओ बताओ, मैंने क्या बताया था? याद करो, कीटोन जो होता है उसके कार्बोनिल कार्बन को दोनों तरफ कार्बन ही अटैच होना चाहिए। अगर उसको एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो गया तो वो कीटोन रहेगा ही नहीं, वो तो फिर से या तो अल्डिहाइड बन जाएगा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, या ये तो कुछ और बन जाएगा, वो तो कीटोन रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए फॉर्म जो है वो कंसेप्ट सिर्फ अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होती है। ठीक है, इस पे अभी डायरेक्टली सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर देंगे, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक नॉलेज के लिए जरूरी है। ओके, और वही अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो एक मैं और एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये चीज कॉमन नेम्स में आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन अटैच हो गया और 3 हाइड्रोजन, मतलब CH3 ग्रुप अटैच हो गया, चलो मान लो ऐसे CH3, मैं इन तीनों को ऐसे सामने रखता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने R लिखा है ना, उसकी जगह मैं CH3 बना देता हूँ, उसकी जगह मैं CH3 बना देता हूँ, CH3 और CH3, ठीक है। अभी ये जो CH3 यहाँ पर बना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसेट ग्रुप कहते हैं, एसेट, एसेट क्या कहते हैं इसको? एसेट। अभी इसको कैसा लिखते दिखाता हूँ मैं आपको। अरे ये चला किधर गया? ठीक है, कोई नुकसान नहीं, नया लाते हैं कहीं और से। ये देखो मिल गया, यहाँ पर CH3 है, तो इसको कहेंगे क्या? तो अगर हर जगह CH3 अटैच हो गया R की जगह तो कहेंगे क्या? इसको कहते हैं एसिड और एसिटाइल ग्रुप। एसिड प्रीफिक्स यूज करते हैं, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, लेकिन प्रीफिक्स यूज करते हैं एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ये हो जाएगा एसीटोन, कीटोन का केट कट कट जाएगा और एसीटोन, और ये हो जाएगा एसेटिक एसिड। ये नॉमेनक्लेचर के पार्ट में आने वाला है, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। H आता है तो फॉर्म बनता है, CH3 आता है तो एसिड बनता है, लेकिन फॉर्म जो है वो कीटोन के कीटोन नहीं बनता उसका, ठीक है, उसका सिर्फ अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और एसिड का एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसीटोन बनता है, और एसिटिक एसिड भी बन सकता है। ओके, चलते हैं आगे। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये तो हमने समझ लिया, क्या एसिडाल्डिहाइड भी समझ लिया, CH3CHO। मान लो यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ गया, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो आप सब लोग जानते हो, ये कार्बन और ये कार्बन बढ़ गया, इसको 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसको 2 हाइड्रोजन, ठीक है, दिखाता नहीं हो। तो ये इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 और 3 हो गए, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब ऐसा ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बना है। 3 कार्बन हो गए, मतलब ये क्या हो गया? प्रोप हो गया, तो इसको कहते हैं प्रोपेनल, इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनल, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया? प्रोपिनॉयल एल्डिहाइड, प्रोपिन एल्डिहाइड, प्रोपियोनल एल्डिहाइड। ओके, तो ये बात है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में, कि इनके जो कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है, वो भी हम IUPAC नेमिंग करते वक्त गिनते हैं, वो भी हमें काउंट करना होता है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल का एक कार्बन, फिर उसके बाजू के 2 कार्बन, तो ये टोटल हो गए 3, तो उसको कहते हैं प्रोपेनल और प्रोपेनॉल्डिहाइड। ये नॉमेनक्लेचर में हम जानने वाले डिफरेंशिएशन की कौन सा कॉमन है कौन सा ये है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी यहाँ पे 4 कार्बन, तो क्या हो गया? ब्यूटेनल और ब्यूट्राइल एल्डिहाइड। 5 हो गए तो क्या हो गया? पेंटेनल, इसको कॉमन नेम में वैलेर एल्डिहाइड, ठीक है। देख लो अच्छे से स्ट्रक्चर, बस एक एक कार्बन बन रहा है, बढ़ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लिप हो गया है, बाकी कुछ नहीं। अभी एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है? CH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच मतलब ये कार्बोनिल का कार्बन है, उसका एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट, मेरा दोस्त है तू,
मेरा तेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, किसके साथ, किसका, कार्बोनिल के कार्बन का और एरोमेटिक रिंग के कार्बन का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है तो उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम हो गया सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, और इसका नाम हो गया पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अभी पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड क्यों, इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अभी ये पैरा पोजीशन क्या है, ये भी इसका भी एक मैं आपको छोटी चीज बता देता हूँ। अगर ये कार्बन, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन इससे अटैच है, तो इसकी जो ये वाली पोजीशन है उसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसकी ये वाली जो पोजीशन है उसको कहते हैं मेटा पोजीशन, और इसकी ये वाली जो पोजीशन है उसको कहते हैं पैरा पोजीशन। फिर से ये साइड वाली तरफ के भी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और एकदम सामने वाली पैरा पोजीशन। तो ये है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस। तो ये दोनों अभी एक दूसरे के एकदम बिल्कुल सामने, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशंस पर है। ठीक है, इसको कहते हैं पैरानाइट्रोबेंजाइड। यूज योर ब्रेन पावर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो जो एलिफेटिक है उसको हम सर्कल बना देते, एरोमेटिक है उसको हम सर्कल बना देते। ठीक है, एलिफेटिक को हम कुछ नहीं करते। तो पहला वाला देखो एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि ये कार्बोनिल कार्बन का कार्बन है, ये डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं हो रहा है, ये कार्बन से ही अटैच हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया, एलिफेटिक हो गया। ये वाला भी कार्बोनिल कार्बन है, ये आगे कार्बन से अटैच हो है, लेकिन ये भी डबल बॉन्ड बना, लेकिन ये रिंग का पार्ट है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया। ठीक है, नीचे वाला भी कार्बोनिल कार्बन रिंग से अटैच है, लेकिन उस रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, और हम एरोमेटिक रिंग क्या है वो जानते हैं, इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग विच कंटेन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये भी एलिफेटिक हो गया। और ये जो लास्ट वाला है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन रिंग वाले कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, इसके आंसर हमारे आगे वाले स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं। तो आंसर पहला एलिफेटिक, सेकंड एलिफेटिक, थर्ड एलिफेटिक एंड फोर्थ इज एरोमेटिक। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स क्या चीज है, अभी तो हमने एल्डिहाइड्स के किया, अभी कीटोन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी कीटोन का मतलब क्या होता है, बीच में कार्बन रहता है, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है और उसका ये डबल बॉन्ड है कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, इसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ तो अटैच होना चाहिए, इसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ तो अटैच होना चाहिए। लेकिन अगर इसके दोनों तरफ भी कार्बन अटैच है, लेकिन वो स्ट्रेट चेन वाले कार्बन अटैच है, तो उसको कहते हैं, सॉरी, उसके दोनों तरफ भी जो कार्बन अटैच है वो सेम है, मतलब यहाँ भी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, वो सेम अगर है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, सिमेट्रिकल या फिर सिंपल कीटोन। अगर दो है, यहाँ पर भी दो वहां पर भी, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। और वहां तरफ दूसरी तरफ अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स को क्या कहते हैं, कि एक तरफ एक ही कार्बन है और दूसरी तरफ 2 कार्बन है, वो क्या बन गए, मिक्स्ड बन गए। जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें यहाँ तरफ एक ही है कार्बन और यहाँ पर 2 है, ये बन गया मिक्स्ड। यहाँ पर भी ये 1 2 3 है, 1 2 3 है, और यहाँ पर 1 2 है, तो ये भी बन गया मिक्स्ड। तो आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत इजी चीज है। तो हम आगे वाले स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे वाला है व्हाट इज एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन मतलब क्या, कि कार्बोनिल कार्बन है, उसको दोनों तरफ कार्बन अटैच होता है तो हमारा कीटोन बनता है, ये तो हमें पता है। लेकिन दोनों तरफ में से एटलीस्ट एक तरफ, एटलीस्ट एक तरफ या फिर दोनों तरफ अगर एरोमेटिक रिंग उस कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन से अटैच है, तो उसको कहते हैं हम एरोमेटिक कीटोन। क्या कहते हैं, एरोमेटिक कीटोन। तो चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन्स। तो पहला हमारा एग्जांपल है बेंजोफिनॉल। तो ये सिंपल है कि मिक्स्ड है, बताओ दोस्तों, बताओ, कमेंट करो। ये सिंपल है क्योंकि इसके दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग अटैच है और सेम ही है, तो इसको कहते हैं सिंपल। ठीक है, दूसरा वाला एसिटोफिनोन, ये तो मिक्स हो गया, ये तो दिख ही रहा है मिक्स्ड है। थर्ड ब्यूटानॉन, ये भी मिक्स्ड है क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, ये भी हो गए मिक्स्ड। और ये लास्ट वाला, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, अभी थर्ड हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो उसको क्लासीफाई करने का टेक्निक है, पहला है CH3COH, उसका उसके कुछ एग्जांपल हम जान लेते हैं। CH3COH, फिर उसको हमने देखा था कि एसिटिक एसिड है। फिर उसके बाद है प्रोपाइनोइक एसिड। जैसा अल्डेहाइड की केस में हमने देखा था वैसे ही है प्रोपाइनोइक एसिड, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइनोइक एसिड। और उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अभी ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों? क्योंकि आगे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। मोनो मतलब वन, डाई मतलब दो। अब इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा टाइप करते वक्त थोड़ी मिस्टेक हो गए तो हम फटाफट सुधारने वाले हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ पर है ऐसे। अच्छा, यहाँ पर था साइज वाला, मुझे मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये सीधी लाइन नहीं आ रही। ओके, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COH COH, तो उसको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मोनो देख लिया, डाई देख लिया, अभी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें देखना है। क्या क्या देखना है और ये भी देखना है। तो इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। जो हमारा नींबू होता है उसको कहते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड। यहाँ पर मैंने नींबू की पिक्चर भी डाली थी, पता नहीं दिख क्यों नहीं रही। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड है ये, जो हमारे नींबू लेमन रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। तो सिट्रिक एसिड में क्या रहता है? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन, यहाँ पर भी सारे कार्बन है। तो ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। तो ये 3 अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने देख लिए सारे के सारे एग्जाम्पल। सारे के सारे एग्जाम्पल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के। किसके? एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब क्या? एलिफेटिक एलिफेटिक हम सुन रहे, मतलब जो स्ट्रेट चेन होती है उसको कहते हैं एलिफेटिक। मान लो उसमें डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, ये स्ट्रेट चेन है, वो रिंग नहीं है, तो उसको कहते हैं एलिफेटिक। और रिंग में भी हो, अगर रिंग एरोमेटिक नहीं है तो वो एलिफेटिक है, मतलब इसको, इस रिंग को हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग। लेकिन जो हमने साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग देखी थी वो एलिफेटिक रिंग ही है। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमने देखे, एसिटिक एसिड, प्रोपाइनोइक एसिड मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अभी अगली चीज क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? एक तो बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन रिंग और कार्बोनिल कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है उससे, तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। फिर थैलिक एसिड, और ये हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको कहते हैं एस्पिरिन। ये जो गोली है ये हम नॉर्मली हेडेक के लिए या फिर कोई और पेन हो रहा है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एस्पिरिन की गोली। यहाँ पर मैंने उसका पिक्चर भी दिखाया है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैचमेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई क्लासिफिकेशन। ये तो पहले हो गया इंट्रोडक्शन, फिर हो गया क्लासिफिकेशन। अभी एक और चीज़ है साइड चेन एरोमेटिक एसिड। साइड चेन एरोमेटिक एसिड मतलब कि ये कार्बोनिल कार्बन का कार्बन अटैच है एरोमेटिक रिंग से, लेकिन इसके बीच में आ रहा है एक और कार्बन। इसके बीच में कौन आ रहा है? एक और कार्बन आ रहा है, उसके बाद ये एरोमेटिक रिंग से अटैच हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है? द एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच द COOH ग्रुप इज नॉट अटैच डायरेक्टली टू द रिंग इज कॉल्ड साइड चेन एरोमेटिक एसिड्स। इसका एग्जांपल क्या है? फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल रिंग है और उसके बाद एसिटिक एसिड मतलब CH3, इसको 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन, CH2 और ये COOH। ठीक है, तो ये हो गया साइड चेन एरोमेटिक एसिड्स। अभी नॉमेनक्लेचर का पार्ट हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फिलहाल आपके जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो स्प्रेड कीजिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।